think of something forbidden, we lose the peace. जो चीज हमें वर्जित है या मना की गई है उसके बारे में विचारना भी पाप, प्रभु के विरोध में पाप करना है। That's how it distracted the mind of evil, mind of Eve, and evil entered the world. और इस रीति से उसने हवा को बहका दिया और इस पृथ्वी में पाप आ गया। Adam and Eve were told by the Lord not to eat from the tree of knowledge of good and evil. और परमेश्वर ने कहा था हवा से कि तुम इस भले बुरे के ज्ञान के भेद के वृक्ष को का फल तुम नहीं खाना। And that the fruit of the tree was forbidden for them. उस वृक्ष का फल उनके लिए वर्जित था। But the evil one distracted the mind of Eve to forget about what God has said and to consider what might happen if they eat from the tree and not die. और फिर शैतान ने उनके मन में उसके मन में ये डाला, हवा के मन में, कि तुम ये जो मना किया उसको उसने नहीं कहा, लेकिन जो उसने अगर तुम खाओगे तो तुम क्या पा जाओगे उसके बारे में चर्चा किया। Now, till the point of time the devil spoke to Eve, the question of eating from the tree and not dying never arose. और इससे पहले जब तक शैतान ने उनके मन में नहीं डाला था कि फल को खा करके मर जाएंगे, ये बात उनके मन में कभी प्रश्न आया ही नहीं था। All she knew was, if I eat from the tree, I will die. That's what God told them. और वो सिर्फ इतना जानती थी कि मैं इस फल को खाऊंगी और मैं मर जाऊंगी, बस खत्म। But evil put a new idea into Eve's mind. लेकिन शैतान ने उसके मन में एक नया विचार डाल दिया, You will not surely die. तुम नहीं मरोगे, नहीं, तुम निश्चित नहीं मरोगे। God had forbidden for them to eat from the tree of the knowledge of good and evil, from the fruit of the tree. But now she is considering eating that. और परमेश्वर ने मना किया था कि उस वृक्ष के फल को नहीं खाना, भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को फल को नहीं खाना, लेकिन उसने उनके मन में दूसरे विचारों को डाला ताकि वो उसकी ओर विचार करें। And she looked at that fruit, good for food, pleasing to the eye. और उसने, हवा ने उस फल की ओर देखा, आंखों में को देखने में मनभावना और खाने में चाहने योग्य था। But what she didn't realize was every tree in the garden of Eden, every tree in the garden of Eden had fruits which are good for food and pleasing to the eye. Genesis 2:9 says that. और उत्पत्ति 2:9 के आधार पर जो भी फल थे अदन की वाटिका में लगे थे, सारे फल आंखों को देखने के लिए मनभाऊ थे और खाने के लिए उत्तम थे। But she's focused only on this tree. लेकिन उस स्त्री हवा ने सिर्फ इस पेड़ और उसके फल की ओर ध्यान किया। He looks at the fruit, good for food, pleasing to the eye. उसने उस फल की ओर देखा और उसने देखा कि ये कैसे आंखों को मन भावना है। Use of getting knowledge. और इससे मुझे बुद्धि मिलेगी। And the evil one does not tell her to eat from the tree. Only says that he asks a question. Did God really say must eat from any tree in the garden? और शैतान ने ऐसा नहीं, उसे ये नहीं कहा कि तुम इस फल को खाना, या इस बारे में नहीं पूछा। उसने कहा क्या परमेश्वर ने तुम्हें इस वाटिका के फलों को खाने के लिए मना किया है? उसने ऐसा सवाल किया। And she said, no, I can eat from the tree. Only this tree I should not eat. Other trees I can eat from. तो हवा ने ये कहा कि नहीं, सारे फलों को तो हम खा सकते हैं, लेकिन इस वृक्ष के फल को खाने के लिए उसने मना किया। And if I eat from that, even if I touch this fruit, I would die. God never said that. He said, don't eat. If you eat, you will die. He didn't say, don't touch it. और उसने यहाँ बढ़ के बता दिया कि अगर हम इसको छुएंगे तो भी हम छुएंगे तो भी हम मर जाएंगे, जबकि परमेश्वर ने कहा था तुम इसे नहीं खाना, नहीं तो निश्चित मर जाओगे। And then the evil one, after getting her answer, he only makes a statement, you will not surely die. That's all he does. और फिर जब हवा ने उत्तर दिया तो फिर शैतान ने उसके सामने इस बात को रखा कि नहीं, तुम निश्चित नहीं मरोगे। Now her mind is working. अब उसका दिमाग काम करने लगा, स्त्री का। Eye is looking at only this tree, not other trees. She didn't even look at them because they were all good for food, pleasing to the eye. But this was more important for because devil says you will not die. और फिर उस औरत स्त्री ने उस फल की ओर देखना शुरू किया, और क्योंकि वहां तो जितना फल था सब अच्छा था, मनभावना मनोहर था, लेकिन अब उसने इस पेड़ और इस वृक्ष के फल की ओर देखना शुरू किया, क्योंकि उसने कहा कि अब तुम नहीं मरोगे, इसको खाओगे तो नहीं मरोगे। Now mind is working. Will I die? Will I not die? Will I die? Will I not die? और अब स्त्री का दिमाग काम कर रहा है कि मैं मरूंगी या नहीं मरूंगी, मरूंगी या नहीं मरूंगी। And she considered eating from the tree and ate it ultimately, and she died, cut off from God. और फिर उस स्त्री ने हाथ बढ़ाकर उस फल को खा लिया और वो निश्चित मर गई। The same way evil will try with us, evil will try with us to make us think about what is forbidden for us.
और इसी रीति से शैतान हमारे मन में भी इस विचारों को लाता है कि हमारे लिए हम करें या ना करें, हमें क्या कर लेना चाहिए। The book of Romans, chapter 13, verse 14, it says, clothe yourself with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the sinful nature. Don't even think about it. रोमियो की पत्री 13 अध्याय और उसकी 14th वर्ष में 14 आयत में हम पढ़ते हैं, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। Don't even think about it. उसके बारे में विचार भी मत करो। The first method devil uses to make us think about what we should not have, what is forbidden. In that process, we lose the peace of God. और जो शैतान है वो हमारे को मजबूर करता है कि हम उस बारे में विचार करें, जिस चीज के लिए हमें वर्जा गया है, वर्जित किया गया है, हम उसके बारे में विचार करें और उसको करें हम। Second method is to make us think about what others have which we don't have. और दूसरा जो तरीका शैतान इस्तेमाल करता है वो ये है कि जो दूसरे के पास है और मेरे पास नहीं है, इस तरह के विचार वो हमारे मन में लेके आता है। Wicked people in the world seem to be very prosperous. कई बार हम इस संसार में लोगों को देखते हैं जो बड़े प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, But we, following the Lord, we don't seem to be having all the material things that they've got. और कई बार हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, लेकिन वो जो उनको भौतिक आशीषें उनको मिली हैं, भौतिक वस्तुएं उनके पास हैं, वो आशीषें हमारे पास नहीं होती। But thinking about what others have, material possessions, and which we don't have, we lose the peace of God. और कई बार हम जब लोगों की भौतिक वस्तुओं को देखते हैं, उनकी भरपूरियों को देखते हैं, तो हम अपनी शांति खो बैठते हैं। Classic example is Asaph in Psalm 73. और आसाप इसका एक बहुत ही जीवंत उदाहरण है भजन संहिता 73 में। And here it writes in verse 1 onwards, surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. As for me, my feet almost slipped. I nearly lost my foothold when when I envied the arrogant, when I saw the prosperity of the wicked. और फिर हम उसका 73 भजन संहिता 73 और उसकी एक आयत से आगे पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। Dushton ka kushal, the people of wicked people, they are flourishing, they are prosperous. वो देख रहे हैं कि ये दुष्ट लोग कैसे कुशल रहते हैं, कैसे ये भरपूरी में और उन्नति करते हैं। Later on, you can read the whole Psalm 73, there's a lot of treasures therein for us to learn from. And then we'll understand that there's nothing like obeying God and following Him and being content with what you've got. और फिर हम अगर भजन संहिता 73 को अपने समय में हम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कितना खजाना इस भजन में छिपा है कि परमेश्वर के पीछे चलने से क्या भलाइयां होती हैं। Very simple solution for that problem of getting distracted by other people's wicked people's blessings is by looking at 1 Timothy 6:6. और इस अगर हमें संसारिक लोगों के भरपूरियों को देखने के बाद अगर हमें कुछ हमारा मन भटकता है तो इससे बचने का एकमात्र बढ़िया तरीका है, वो है 1 तीमुथियुस 6 और 6 आयत के आधार पर। उसको हम पढ़ते हैं। Yeah, please read in Hindi. Please read in Hindi. उसमें हम पढ़ते हैं, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। So godliness with contentment is great gain. हाँ, सो संतोष के साथ भक्ति बहुत बड़ी कमाई है। We're called to be godly people, follow godliness and be content with what we got, then there's a great gain. तो हमें ये कहा गया है, हमें आह्वान करते हैं प्रभु का वचन कि हम प्रभु के भक्ति में संतुष्ट रहें और यही हमारे लिए बहुत बड़ी कमाई है या भरपूरी है। Don't get distracted by wicked people flourishing in the world materially and they seem to have everything in life. But we don't seem to have that. But we got peace and joy and they are following God, nothing like it. और संसारिक लोगों की तरफ ना देखें कि वो कैसे भरपूरी में है, कैसे उन्नति में है, प्रगति में है, हम उनकी ओर ना देखें। हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं और इसीलिए हमारे पास प्रभु यीशु मसीह की शांति है और उसमें हम संतुष्ट रहें। Every good promise of God is ours. और प्रभु यीशु मसीह की हर एक आशीष जो है, जो भली आशीष है, वो हमारे लिए है। And there are 7,487 promises in the Bible. 7,487 good promises. For all of them are for us. 7,487 आशीषें हैं बाइबल में के अंदर और ये सब विश्वासी मसीहियों के लिए हैं। So as you follow the Lord and we don't seem to be having all the things we would like to have,
They will make us think about, look at those people, they're not following God, they are worldly people, they have everything in life, fame, power, money, everything they got. What about you? Where are you? And we lose our peace thinking about that. और जब हम इस संसार के लोगों की ओर देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि अरे इनको तो कितनी आशीषें हैं, उनके पास कितना उनके पास पैसा है और उनका नाम है और वो उनके पास सामर्थ है, सब कुछ है उनके पास और हमारे पास नहीं है। हम तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो शैतान हमारे सामने ऐसी बातों को लाता है। We are count our blessings. We got salvation. We got the privilege of abundant life in this world, peace, joy, amazing blessings. Think of those things. Don't think about worldly things. हमें अपनी आशीषों की ओर देखना है कि हमें उद्धार मिला है, शांति मिली है, प्रभु का आनंद मिला है, सब चीज हमारे पास है। हम उन आशीषों को गिने। The third way by which it distracts our mind from being Christ-centered is by making us think about what we think we're going to have in the future, but we won't have. और तीसरा तरीका जो शैतान हमारे लिए इस्तेमाल करता है हमारे मन को भटका देने के लिए, वो ये है कि हम सोचते हैं कि हम इसको हम पा लेंगे, लेकिन हमें मिलता नहीं है। No. He makes us think about what we think we're going to have, we won't have that. और हम सोचते हैं कि हमें ये मिल जाएगा, लेकिन हमें वो बात हमें मिल नहीं पाती है। No, brother, different. He makes us think about problems we're going to have in the future. We may not have problems. Makes us think about problems and make us anxious. We won't have the problem. अच्छा, अब वो हमारे को ऐसे मन में डालता है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हमें कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन हमारे जीवन में जब समस्या आती है तो हम सोचते हैं कि वो हमारा मन भटक जाता है। Now, he makes us anxious basically. और वो एक तरह से वो हमारे मन को बड़े उत्तेजित कर देता है या परेशान कर देता है। He makes us think about certain problems we think we're going to have in the future, we will not have. और फिर वो हमारे सामने ऐसी बातों को लाता है कि देखो तुम्हारे को भविष्य में ये वायदा मिला था, प्रॉमिस मिला था कि तुम्हें ये मिल जाएगा, लेकिन हमें मिला नहीं। No, but that's the other way around. He makes us think about imaginary problems we think we're going to have in the future. वो कई बार हमारे सामने ऐसी बातों को लाता है जिसको हम सोचते हैं कि ये वाली समस्या मुझे आने वाले दिनों में आ सकती है, पड़ सकती है, But that will not happen. लेकिन वो कभी हुआ ही नहीं। Imaginary problems. कभी-कभी हमारे मन के विचारों में कि हम ये समस्या मेरे जीवन में आ जाएगी, हम ये सोचते रहते हैं। Basically, putting anxious thoughts in our mind. कई बार वो इस तरह के परेशान करने वाले विचारों को हमारे जीवनों में डालता रहता है। Most things we worry about don't happen. और बहुत सारी चीजों के बारे में हम चिंता करते हैं जो हमारे हकीकत में हमारे जीवन में हुई ही नहीं। We imagine we're going to have a problem in the future, and we lose the peace today by thinking about the imaginary problem of the future. और हम कुछ चीजों के बारे में विचार करते रहते हैं कि भविष्य में मेरे साथ ये घटना घट जाएगी या मैं ऐसी रीति से ये समस्या मेरे जीवन में आएगी, वो भले हमारे जीवन में कभी आती ही नहीं वो समस्याएं। It will not happen in the future, but today we think about that and we lose the peace. और वो भविष्य में भी नहीं होने वाली है, लेकिन हम उसको आज सोच के हम उसके अपनी शांति को भंग कर लेते हैं। A classic example is Jacob going back to his home after being told by God to go back, when actually he went away from his home only because Esau's brother was trying to kill him. और हम इसका एक बड़ा जीवंत उदाहरण हम देखते हैं, याकूब जब अपने भाई तो उसको मार देना चाहता था ईसौ, लेकिन वो वहां से भाग के गया था और वो अब वहां से वापस लौट के आ रहा है। And he came back because God told him to go back. और वो वापस आ रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा कि तू वापस जा अपने घर, पिता His के mother घर। his mother had told him, Rebecca, your brother Esau wants to kill you. You go to my brother Laban. After brother's anger subsided, I'll send for you. Come back. और फिर रेबेका ने अपने पुत्र याकूब से कहा था कि तू तेरा भाई तेरे को मार डालना चाहता है, तू यहाँ से भाग जा, मेरे भाई अपने मामा के घर लाबान के घर चला जा, और जब तेरे भाई का क्रोध ठंडा हो जाएगा तब मैं तुझे वहां से बुलवा लूंगी। But no news from mother that Esau's anger subsided. और माँ की तरफ से कोई संदेश आया ही नहीं कि उसके भाई का क्रोध ठंडा हो गया। 20 years he's there with his uncle and he got acquired wives and children, everything, but no news from mummy that Esau's anger subsided. और 20 साल वो अपने मामा के घर में रहा, उसने वहां शादी भी कर ली, उसके बच्चे भी हो गए, संतान हो गई, सब कुछ हुआ, लेकिन माँ की तरफ से कोई संदेश नहीं आया कि उसके भाई का क्रोध ठंडा हो गया। But God tells him, go back. Genesis 31 verse 3, go back. And he goes back. और उत्पत्ति 31 और उसकी तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि तू वापस आ, अपने पिता के घर में जा।
While going back, he's very, very anxious. How will Esau receive me? Is he going to kill me? Is he still angry with me? He's very worried, but he's obeying God. और लेकिन वो वहां से वापस तो चल पड़ा, लेकिन मन में बड़ी चिंताएं हैं कि मैं मेरे भाई का क्रोध ठंडा नहीं हुआ होगा, मैं जाऊंगा, मैं कैसे उसका सामना करूंगा, ये सब चीजें वो सोचता हुआ और परेशान होकर के चला आ रहा है। He's imagining a problem, and the problem is not going to be there at all. Let's see what finally happened. और वो तो एक मन में विचार करता जा रहा है कि ये समस्या मेरे सामने आने वाली है, समस्या पड़ेगी मेरे ऊपर, जबकि वो हकीकत में उसके ऊपर पड़ी नहीं, ये तो हमने वचन से पढ़ लिया है। As he goes back, he sends messengers to his brother to tell him, I've got men servants, maid servants, cattle, donkeys, and they go with this message, trying to tell his brother, I'm going to give you some gift, some bribe. और फिर हम देखते हैं कि वो जब वो लौट के आ रहा है तो अपने आगे वो कुछ भेंट के पशुओं को आगे रखता है और अपने जो नौकर चाकर हैं उनको भी आगे रख के ले जाता है और अपने भाई को दिमाग को ठंडा करने के लिए उसको उपहार देता है। And then the messengers come back in the book of Genesis 32nd chapter 6 and 7. They come back saying, Esau is coming and 400 people are with him. और फिर जब ये उसके जो सेवक लोग जाते हैं और ईसौ से मिल के वापस आते हैं और आकर के बताते हैं कि ईसौ भी तुझसे मिलने के लिए चला आता है, उसके साथ 400 लोग भी आ रहे हैं। And verse 7 of Genesis 32 says, in great fear and distress, he divides the possessions and is preparing to meet his brother. Great fear and distress, worried about what's going to happen. और उत्पत्ति 32 और उसके 7वीं आयत में हम देखते हैं, तब याकूब निपट डर गया और संकट में पड़ा और ये सोचकर अपने संग वालों के और भेड़ बकरियों, गाय बैलों और ऊंटों के अलग अलग 2 दल कर दिए। And he praised God for the situation there. और फिर वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, ये कैसा परमेश्वर, ये कैसा मेरा स्थिति है, मेरे को इस स्थिति से बचा, परिस्थिति से। After praying, he's still making plans how to meet his brother. अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद भी वो अपने मन में योजनाएं बना रहा अपने भाई से मिलने के लिए। And the anticlimax is when the brother comes and meets him, he comes running, hugs him and kisses him. Genesis 33rd chapter verse 4. और जब इसका भाई उसके मिलने के लिए आया और जब उससे मिलने के लिए आया तो वो इसके विपरीत वो आता है और उसको हम पढ़ लें भजन से उत्पत्ति 33 और उसके 4 आयत में, तब ऐसा उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपटकर चूमा, फिर दोनों रो पड़े। All the worrying went waste. Why did he worry? God had told him, go back. When you obey God, he'll make everything fall in place. और वो सारा जो चिंता कर रहा था वो सारा चिंता उसकी बर्बाद हो गई और परमेश्वर ने कहा था तू जा, उसको आज्ञा माननी चाहिए थी, जाना था, लेकिन वो चिंताएं कर रहा था जो पूरा व्यर्थ था। And Jacob was so pleasantly surprised when his brother came and hugged him and kissed him. और जब याकूब को उसका भाई आकर के गले लगा रहा है, लिपट कर और उसको चूम रहा है, तो याकूब बड़ा अचंभित हुआ। And he wanted to offer some of his possessions to his brother Esau as a gift, but he refused to take it. और यहाँ पे याकूब उसको कुछ भेंट दे रहा है, लेकिन ईसाऊ कहता मुझे भेंट नहीं चाहिए भाई। And look, let's read in Hindi the 33rd chapter of Genesis, verse 33rd chapter, verse 10. Look at Jacob's response. उत्पत्ति 33 उसका 10वीं आयत को हम पढ़ते हैं। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। But he's saying, look at you, like look at the face of God. He feared this man, but he says you like face like that of God. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वो तो इस व्यक्ति से भय खा रहा था और वो कह रहा है कि तेरे दर्शन करना मुझे ऐसा लगता है मानो परमेश्वर के दर्शन मैंने कर लिए। God had changed the mind of Esau. परमेश्वर ने ईसाऊ के मन को परिवर्तित कर दिया था। Don't worry about the future at all. भविष्य के लिए चिंता मत करो। You may only concern about pleasing God in this world every day. सिर्फ परमेश्वर को प्रतिदिन हम प्रसन्न करें इस पृथ्वी के जीवन में। 1 Samuel 16:7 says, when a man's ways are pleasing to God, he makes even his enemies live at peace with him. पहला सैमुएल 16 और उसका 16 verse 7. उसका 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, पहला सैमुएल 16:7, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, न उसके डील डौल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसको I made a mistake. It's Proverbs 16:7. Proverbs 16:7. नीति वचन 16:7 को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 16 और उसका 7वीं आयत।
उसमें लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। When a man's ways are pleasing to God, he makes even his enemies live at peace. Esau was at peace with Jacob because Jacob obeyed God. He went back even though mommy had not told him. The brother's anger subsided. सो जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तो शत्रुओं से मेल कराता है। इसका मतलब ये है कि माँ से कोई संदेश नहीं आया याकूब को, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने ईसाऊ के मन को परिवर्तित करके अपने भाई से मेल करा दिया। Simple lesson for us is live every day for the Lord, please Him, and don't worry about the future. God will make everything fall in place. तो इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि इस बात से कि हमें बिना मतलब की चिंताएं करने की आवश्यकता नहीं, आने वाले दिनों के बारे में विचार करके, बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करें ताकि उनकी आशीष हमारे जीवन में आए। The fourth method devil uses to distract us from being Christ-centered is to make us think about what we have, which we feel we should not have. और तीसरी चीज, चौथी चीज Yeah. जो शैतान हमारे मन में डालता है, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह में केंद्रित विचार रखने से जो भटकाने वाली बातें डालता है, वो ये है कि जो चीज कभी हमें आशीषें मिली होती हैं, हम उसके बारे में ये सोचते हैं कि ये मेरे को नहीं मिलनी चाहिए थी। Not Ashish, it is problems we are facing in the world. प्रॉब्लम्स जो कठिनाइयां मेरे जीवन में आती हैं, वो मेरे जीवन में आई हैं, ये मुझे नहीं आनी चाहिए थी। हम ऐसा करके विचार करते हैं। शैतान ऐसी I'm चीज obeying लाता है। God, I'm walking with why this problem for me, I shouldn't have this, why me, we keep complaining. और अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह के वायदों वचन के आधार पर जीवन जीता हूँ, तो फिर मेरे जीवन में ये परेशानियां क्यों आती हैं? Why do you think like that? हम ऐसा क्यों सोचते हैं? कैसे People ऐसा makes सोचते us हैं? think. He said, oh, you're following God, you're so holy, you're so nice, why are you having the problem? Look at the way you're having troubles in this world. Forget about the following Jesus, he will kind of tell us. तो ऐसे विचार हम क्यों हमारे मन में आते हैं? शैतान हमारे मन में वो विचार लाता है कि तू इतना अच्छा जीवन जी रहा है, प्रभु के ऊपर आधारित जीवन जी रहा है, फिर तेरे जीवन में क्यों परेशानियां आ रही हैं? वो शैतान हमारे मन में ये विचार लाता है। And we wonder, why Lord, why am I having this problem? You don't realize that when you follow Jesus, you'll have problems, but those problems are creating for us glory in heaven, rewards in heaven. और फिर हम प्रभु से सवाल पूछने लगते हैं कि ये प्रभु मेरे जीवन में ये क्यों परेशानी आ रही है, जबकि प्रभु हमें कहते हैं कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा धन में है, ये इस पृथ्वी पर तुम्हें परेशानियां आएंगी। In the world, we'll have difficulties. In John 16:33, he says, I've told you these things, that me you have peace. In the world, you'll have troubles, but take heart, I've overcome the world. और यूहन्ना 16:33 में प्रभु ने कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। We have problems in circumstances, we also have problems from people, but don't get distracted because those problems are creating for us glory in heaven. कभी हमारे जीवन में दूसरे लोगों से भी समस्या आ सकती है, कभी हमारे जीवन में और भी दूसरी समस्याएं आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन इससे हमारा विचार भटके नहीं प्रभु यीशु मसीह से। When you follow the Lord, we become better people. When you become better people, expect people to appreciate that, but people criticize us and they become our enemies, and we can begin to wonder, why Lord, why me? और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हम अच्छा जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं, और जब अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे मन में ये इच्छा होती है कि लोग हमारी सराहना करें, लेकिन उसके विपरीत हमारे जीवन में होता है, तो हम कहते हैं प्रभु ऐसा मेरे जीवन में क्यों हुआ? In 1 John 3:13 is written, don't be surprised if the world hates you. और पहला यूहन्ना 3 और उसकी 13 आयत में हम पढ़ते हैं, 13वां वचन में हम पढ़ते हैं, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंबा ना करना। Now, Jesus lived a perfect life, Jesus. Pardon me? Our Lord Jesus Christ lived a perfect life. प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर सिद्ध जीवन व्यतीत But किया, people hated him. लेकिन लोगों ने तो, इस संसार के लोगों ने उनसे घृणा किया। He told his own brothers who at that time were not believers, later on they became believers. He told them in John 7:7, the world cannot hate you, but the world hates me, because what I testify is what it does is evil. और यूहन्ना उसके 7:7 में हम देखते हैं कि वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जगत तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने भाइयों से कहा था जब वो अविश्वासी थे। Later on they became believers, and two of them wrote the book of James and the book of Jude, two of his brothers. और फिर बाद में
वो विश्वासी हो गए और उन्होंने यहूदा और याकूब की पत्री लिखी। Okay, that's the fourth method devil uses to make us think about problems we have today, which we should not have. We feel we should not have, but they are actually good for us because they are blessings for us. और चौथी बात जो हमने देखा वो ये है कि जो परेशानियां हमारे जीवन में होती है, वो हम हमारे मन के विचार से वो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। The fifth method is to make us forget about what we already have. और पांचवा तरीका जो शैतान इस्तेमाल करता है वो ये कि हम भूल जाते हैं कि हमें क्या आशीषें मिली हैं। Sometimes people Christians even forget that they are saved. और कई बार हम जब हमें लोग हमारी भर्त्सना करते हैं या हमें गलत बातें बोलते हैं हमारे विरोध में, तो हम भूल जाते हैं कि हम मसीही लोग हैं। Now, our memory is sometimes very short that we even forget that we are saved people, that we are going to go to heaven when we leave this world. और हमारी जो विचार करने की क्षमता है या याद रखने की जो क्षमता है वो बहुत थोड़ी है, सीमित है। कई बार हम ये भी भूल जाते हैं कि मैं उद्धार पाया व्यक्ति हूँ, मुझे प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा काल के लिए रहना है, और हम इस बात को भूल जाते हैं। We forget Christ lives inside us. He lives in our bodies. और हम ये भी भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में, हमारे शरीर में, देह में निवास करते हैं। हम ये भी बात भूल जाते हैं कई बार। We forget the promise of God. हम परमेश्वर के आशीषों को भूल जाते हैं, वायदों को भूल जाते हैं। Devil makes us forget these things. He takes the mind away from what we already have and makes us think about what we don't have. और शैतान जो है वो हमारे मन से इन बातों को निकाल देता है जो हमारे साथ है, और जो हमारे पास नहीं है उनकी ओर हमारे मन को खींच कर ले जाता है। In Psalm 103 verse 2 is written, forget not God's benefits. और भजन संहिता 103 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, हे मेरे मन, परमेश्वर के किसी उपकार को ना भूलना। So, when we remember what God has done for us, what God has spoken to us, we preserve the peace of God. Devil wants to steal that by making us forget what we already have. तो परमेश्वर ने जो हमें भरपूरी दी है उसको हमें बरकरार रखना है या अपने अंदर समा के रखना है, लेकिन हम भूल जाते हैं और फिर हम उसके विपरीत कार्य करते हैं। 7:4-7 promises, all of them are for us, and how many of them we know? I don't know, but most of them. और पूरे वचन में 7,487 ऐसी आशीषें हैं जो हम विश्वासी मनुष्यों के लिए दी गई हैं, और हम उसको कितना हम जानते हैं। And just one promise in the Bible is sufficient for us never to worry about our future. Jeremiah 29:11. और यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, अपने भविष्य के लिए चिंता मत करो। And one promise enough for us. But that verse says, God knows the plans He has for us, plans to prosper us, not to harm us, give us hope in the future. Jeremiah 29:11. यिर्मयाह 29:11 में ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। एक यही वायदा बहुत काफी है हमारे सारे चिंताओं को दूर करने के लिए। To preserve the peace and joy of the Lord, we must consciously, proactively focus the mind on the Lord and spend time with Him, read His scriptures, and not get distracted by what people say, what people do to us. तो प्रभु यीशु मसीह के आशीषों में निरंतर बने रहने के लिए, प्रोत्साहित बने रहने के लिए हमें प्रभु के विचारों में केंद्रित, प्रभु में हमें केंद्रित रहना है, प्रभु यीशु मसीह में। God bless you all.